باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتخبین المنتجبین لا اللہ علی ادائہم اجمعین السلام اللہم صلی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناز علی مظہر العجائب تاجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سائن جلی بے علین بے علین بے علین بے علین یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یاران نقطہ موالیان حیدر کرار عزاداران حسین شمع رسالت کے پروانوں دیوانوں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا اس خراب موسم میں چل کے آنا. پہلے موسم میں حدت بڑی تھی، اس کے بعد اس کے تیور بدل گئے، آندھی کی شکل میں آ گیا، تو پھر بھی آپ لوگ آئے اس فرش اقتدا پہ بیٹھنا. اللہ قبول منظور فرمائے. کارواں کا کیا گیا اہتمام، آپ لوگوں کی محنت اور دعاؤں کا وقت نہیں ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، اپنے ڈومین میں لا کے بات کرنی ہے کیونکہ مجھے گاؤں گزرنا آتا ہی نہیں. مانتا وہ ہوں ان کو ہوں جو کسی کا حق کھاتے ہیں، اسی میں ڈومین میں رہ کے بات کرنی ہے. اور آج کچھ ڈیوٹی لگی ہے جناب، اس پروگرام کے رواں بھی ہیں، مجھے یہاں انٹروڈیوس کروانے والے بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں جناب غلام سلطنتی صاحب. اللہ نے بے لوس آدمی ہیں، نہ کوئی طلب رکھتے ہیں، نہ کوئی نہ تیل دیتا ہے، نہ کوئی فیس دیتا ہے، پھر بھی آ کے ہماری کوریج کرتا ہے اور یورپ تک ہمارا نام پہنچانے میں. باہر غیر ملکوں میں ہمارے سے کارڈ آتی ہیں تو وہ صرف کلندری صاحب بول رہے ہوتے ہیں، میں نہیں ہوتا. میری ذات کے اوپر ان کے بہت سے احسانات ہیں، ان کا صلہ انہیں مخدومہ کائنات کی جیسا بات نہیں. میں تو سب دعا کر سکتا ہوں، دعا ہوں کہ صحیح حسین کے بلند ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، جس کی جو حاجت ہے وہ خدا پوری فرمائے. میری عادت ہی ایسی ہے کہ میں ایک کارواں بنا کے چلتا ہوں، وہی بات کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال یہ سب کا خیال ہے، میرا نہیں خیال سب کا خیال ہے، ہر شے میں جلوہ ہے اسی کا جمال ہے. ایک لفظ کن سے ایسی سجائی ہے کائنات، جو ذرہ کس جگہ ہے فقید المثال. اس ہستی کی تعریف میں بیان کیا کروں گا جو تخلیقار محمد و آل محمد، وہ نہ میری سوچ میں آ سکتا ہے، نہ میرا ادراک وہاں تک جا سکتا ہے، نہ میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں. ہماری ایک ادنا سی کوشش ہوتی ہے. تو ان کے ذکر کے بعد ایک بات وجہ تسمیہ کائنات کی کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. پوری دنیا کے سمندر بھی نچوڑ رہا ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور ضیافت تباہ کے لیے بات سے دل میں اترے تو صحیفے پہ لکھیے گا، نہ کریں گے تو کوئی بات ہی نہیں. ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہوں ان لوگوں سے خطاب ہو جو سلمان اور بزر مزاج ہوں، جو کمر تینت ہوں، جو سوچ کر نہیں مودت کو اوڑ کر سننے کے عادی ہوں. ان لوگوں سے خطاب ہوتا ہے. باقی کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے، مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے. ان لوگوں سے بات ہی نہیں جو اس سٹر کو بیکار سمجھ کر سنتے ہیں. میں اس کو عبادت کرتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں. تو دوبارہ بات کر رہا ہوں اسی بات پہ کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور پوری دنیا کے سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا.
ना आ सकती है, उसे अल्लाह समझ सकता है या मोहम्मद मुस्तफा समझ सकता है। बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर क्योंकि बात ही ऐसी है कि गुल को गुल समझूं, कली को मैं कली कहता रहूं। वाह वाह वाह, गुल को गुल समझूं, कली को मैं कली कहता रहूं, या खुदा हक के वली को मैं वली कहता रहूं। और हुबे हैदर बन के दम सीने में रहे, इस तरह सांस आए या ना आए, या ही नहीं कहता। उस्ताद मोहतरम की ड्यूटी थी कि हर हालत में बात करनी है। बच्चे ने कोई और ड्यूटी लगा दी। मोमिन के दिल बड़े नाजुक होते हैं, टाइम में गुंजाइश नहीं होती। दिल करता होता है कि जो नुक्ता के छोड़ते हैं लोग, उस पे एक अशरा पढ़ा जाए। बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, एक तारीख होती है, उसके सीने को चीरना पड़ता है, उसके अंदर हाथ डाल के कुछ ना कुछ कहरे नायाब निकालने पड़ते हैं। अभी उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि हमारे फराइज क्या हैं, हमारे हकूक क्या हैं। सिर्फ आना, नारे लगाना, लंगर खाना, चले जाना, ये शिया। कभी आप लोगों ने शिया के लफ्ज़ी और लुग़वी मानी पे गौर किया? शिया के माने होते हैं फॉलोअर, तकलीद करने वाला। 18 मानी है शिया के, और शिया के एक मानी है ग्रोह, और एक शिया के मानी है पाक। उनका लजपात से साथ लगाते हैं, उसे अपनी तरह का बना देते हैं। ये उनके दर की करीमी है। और आप ये चाहें, एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि हर बंदा इस तहरीज पे क्यों नहीं आता? हर बंदा दरे मौला अली पे सजदा रेज़ क्यों नहीं होता? उसकी बात का जवाब दे रहा है अजीज खाजा डबल मेलर भी। कैमरे लगे हुए हैं, जहां मर्जी लिख देना, जहां मर्जी कह देना। ना कभी गोली से डरे हैं, ना कभी इनके हक से पीछे हटे हैं। इसने जो करना है कर ले। मेरा रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से आता है। मौला कायनात की जूती का सदका बढ़ता है। ना किसी से डरे हैं, ना डरना है, ना झुके हैं, ना झुकना है। कि मांगता हूं मैं हुसैन इब्ने अली के दर से, मांगता हूं मैं हुसैन इब्ने अली के दर से, दस्ते गैबत से शहनशाह वफा देता है। मतलब गौर कीजिएगा, सर को उठाइएगा, नारा कर्ज हो जाएगा आप पे। अगर ना लगाया तो फिर देखना होगा कि आपके साथ या बुलंदियां होंगी या फिर नीचे गिर जाओगे। आज अजीज सारी के ज़िम्मे आपने लगाया है तो कुछ बता के जाना चाहता हूँ, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ। अरे क्या कि मांगता हूँ मैं हुसैन इब्ने अली के दर से, दस्ते गैबत से शहनशाह वफा देता है। जिंदगी भर की इबादत का खुलासा है यही, अच्छा, इश्क़ शब्बीर की तौफीक खुदा। बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर आपकी अज़मतों को सलाम, आपकी मोहब्बतों को सलाम। खरीदा है आपने अजीज साहब को, खुदा की कसम। हम पैसों से नहीं खरीदे जाते, क्योंकि बिकते नहीं, खुदा की कसम। हम फकीर लोग, माना हमारी जात में सौएब है, मगर बिकते नहीं, खुदा की कसम। हम फकीर लोग, हमें भी पैसों से नहीं खरीद सकता। जब खरीद सकता है अली की मोहब्बत से खरीद सकता है। हम उसको नाक रगड़ के मिलने के लिए तैयार हैं। बात वही मेरी चल रही थी कि इश्क़ शब्बीर की जब तक वहां से तौफीक ना मिले, अभी तक भाई बात कर रहे थे, मैंने ये कहा, वो कहा, वहां कहा। अबू सुफियान आया था मेरे मौला के पास, आपकी खिलाफत छीनी गई है, मैं सवार कितने लाऊं, मैं प्यादे कितने लाऊं? आपने आंखों में आंखें डाल के कहा, ओए शजरे खबीसा के शख्स, मेरी बात को सुन। तू जानता नहीं मैं अली हूं, मैं होने को होने से पहले जानता हूं। जा ऐलान कर दे, अगर सुबह 20 बंदे सर मंडवा के कफन पहन के तलवारें बेनियाम करके आ गए, मैं खरूज कर दूंगा। सुबह आने वाले कौन थे? वही कामुल ईमान, बुज़र आया, सलमान आया, कंबर आया, हज़रत यमानी आया, सैयद रूमी आया, यही लोग आने वाले थे। तो फिर भाई बात ये है कि मुस्तफा चेहरा हो जिसका, किबरिया चेहरा हो जिसका, मुस्तफा जिसका बदन, वाह भाई वाह, किबरिया चेहरा हो जिसका, मुस्तफा जिसका बदन, इस कदर नूर के उस मरकजी किरदार को ढूंढा करो। मादरे अस्माइल ने जैसे पानी तलाशा था कभी,
इस तरह से 12वीं सरकार को पूरा करो। मौला आते नहीं, मौला आते नहीं। आपको बता दूंगा, पता है मौला कैसे आए? आप जश्न में आके आप मजलिस में बाहर खड़े रहते हैं, अजीज साहिब बात कर रहा है, कल को पढ़ने देना ना पढ़ने देना, बज़म से निकाल देना। आपकी बज़म का सबसे अदना कारकुन हूँ, अक्सर हूँ, सबसे छोटा जाकर हूँ, लेकिन ऐलान कर रहा हूँ कि अगर खाना है माबूद में हैदर नहीं आते, अगर खाना है माबूद में हैदर नहीं आते, बुत अंदर ही पड़े रहते, कभी बाहर नहीं आते। अरे वो क्या मिलाएंगे जश्न वलायत जो बाहर ही खड़े रहते हैं, कभी अंदर नहीं आते। क्या कहने की तहारत बोल रही है खुदा की कसम। क्या बातें कर दी आपने मुझे, बाहर खड़े रहते हैं कभी अंदर नहीं आते। जालिम को पता है कि ये मजलिस से अज़ा है क्या, ये अज़ा है क्या। खुदा की कसम इसके फजाइल पढ़ दूं तो कभी आप इस फर्श अज़ा से उठे ही ना। बताएं कब वो बला मेरी शुमार करते हैं। आ जाए इमाम ज़माना, आ जाए इमाम ज़माना, और इमाम ज़माना से मिलना सीखो तो सही, अतवार तो सीखो, तकल्लुम तो सीखो, आदाब तो सीखो। हमसाया भूखा मर रहा है, आपको पता नहीं, आप तिजोरियां भर रहे हैं। हमसाया अपना जाकर अपना कोई महब बीमार पड़ा है, आप तीमारदारी के लिए जाते, आपकी नाक नीची होती है, मैं गरीब को मिलने कैसे जाऊं। आपने तो बड़ी खबर है, खुदा की कसम रसूल सकलैन की हदीस है कि वो शख्स कोई मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद पेट में भरकर खाए, उसका हमसाया भूखा सोए। यहाँ तक ऑर्डर है कि 40 घरों तक हमसाएगी है। अगर फ्रूट लाओ तो छुपा के खाओ, या हमसाए के घर दो, उसके छिलके बाहर ना फेंको, कहीं ऐसा ना हो उसकी दिलादारी हो जाए। कभी हमने सोचा कि हम ये काम कर रहे हैं, हम तो जनाजों में शिरकत नहीं करते, इसने मेरा फलां किया था, इसने मेरा फलां किया था। मरे हुए बंदों से क्या दावत होती है? कितनी हमारी बड़ी बज़्म है। बताएं कभी किसी की हेल्प की आपने जाके कि ये मेरी तरफ से 5 लाख 10 रख लो यार, तेरे हालात बुरे हैं, तेरी गरीबी है, कुछ ऐसा मसला है, तो जाएगा उसकी हेल्प करें। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इस्तिगासा का मेंबर था, दुख है खुदा की कसम, पूरे 6 माह मुझे पूछने कोई नहीं आया। जब मैं आ जाऊं अजीज साजिद, वाह 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 वाह, कैसी मोहब्बत है। कमाल वाली बात है, अपने अंदर को जगाओ, जमीन में झांको, फिर पता चलेगा कि शीयत क्या होती है। महबूब ने महब से मोहब्बत कमाल की, कहा मौला अली, कहा मीसम। महबूब ने महब से मोहब्बत कमाल की, मीसम तेरी खजूरें अली बेचते रहे। ये है प्यार। सीखो मौला अली से प्यार करना, फिर पता चलेगा क्या है ये मुझ से शबीर। खताएं कब वो भला मेरी शुमार करते हैं, खताएं कब वो भला मेरी शुमार करते हैं, वो हुर की तरह मुझ पे एतबार करते हैं। और अजीब खैमाए नुसरत है मजलिस से शबीर। इमाम वक्त मेरा इंतजार करते हैं, इमाम वक्त आए हुए होते हैं, आप जैसे इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत बड़े शुमले हैं आपके, बहुत बड़ी शान है आपकी कि इमाम ज़माना इंतजार करें, आप अंदर आके फर्श अज़ा पे ना बैठे। यहां से सवाब लेके जाएंगे आप, सवाब मिलेगा, क्योंकि अली के हाथ की हल्की सी एक जुम्बुश है, खुदा के दीन को उम्र दराज मिलती है। तुम्हें नमाज में अली नजर नहीं आता, मुझे अली में मुकम्मल नमाज मिलती है। और अली की जात ही मुश्किल कुशाए आलम है, अली की जात मुझे कारसाज लगती है। वाह 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 वाह। मैं बेनमाज नहीं हूँ, नमाजियों सुन लो, मुझे अली की मोहब्बत नाराज। आज बात के अंदर की हो रही थी, एक बात के अंदर की करूं तो उनके साथ बुग्ज हो जाएगा, ज्यादती हो जाएगी। दस्ते कुदरत को माफ करता है, दस्ते कुदरत को माफ करता है, मौत को भी हयात करता है, और उसका तो बोदला नहीं मरता तो कलंदर की बात करता है। बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर। उसका तो बोदला, 2 भाई बैठे हुए हैं, मुझसे कौशैन बहुत प्यार करता है, मैंने हमेशा उसके दुआएं की हैं। नसीब साथ बैठा हुआ था, तो मैंने ना एक बात पढ़ी थी, नुक्ते बयान करना चाहता हूँ। 5-7 में बाबा और लेने हैं और तमाम है। मैंने कहीं लिखा हुआ पड़ा था, अगर खून के रिश्तों में होती वफा, यूसुफ कभी ना बिकता मिस्र के बाजार में। मैं बच्चा था, मेरे ज़हन पे असर कर गया, यार ये बाकी बात है,
फिर इस आशकारा किया अल्लाह ने इस बात को कि होता क्या है, पदर या पिदर दोनों से फारसी के इन कहते हैं बाप को। ब्रदर हमारा भाई है, सिस्टर है, कहा है। तो उस बंदे ने कहा, वो सारे मोहतरम सवाब नहीं पहुंचे, उनकी बात है कि पिदर दी मोहब्बत दा आकाशमंद है, पिदर दी मोहब्बत दा आकाशमंद है, तो सिर्फ गुले ने अलमासमंद है। और तो यूसुफ दे वीरां दा डरिया होया है बिरा चंगा होवे ते अल्लाह की मोहब्बत सलामत रखे, माल की जोड़ी सलामत रखे, बड़ी प्यारी जोड़ी है, मालिक के लिए तौफीकात अता करे। बस बात करते करते सारे नुक्ते में थोड़ा थोड़ा छेड़ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बात ऐसी करनी है कि अभी अभी जनाब नबी रसूल निगहबान रसालत सुभान अल्लाह मन कुन तो मौला के बाबा, कुल्ले ईमान के बाबा, यूसुफुद्दीन के बाबा, और पोस्टें चली हुई थी, चाचा हजूर ने कलमा पढ़ा हुआ था कि नहीं, ये हुआ था कि नहीं। आइए सुनिए कि शहरे तौहीद की, नज़ूल तौहीद की हर एक बस्ती में बुग़्ज़ तौहीद का सामान बड़ा वाफिर था। शहरे तंज़ील रसालत की हर एक बस्ती में बुग़्ज़ तौहीद का सामान बड़ा वाफिर था, और एक ही चाहने वाला था अली का शफ़क़त। और यारों ने ये लिखा है वही काफ़िर। और बदबख्तों, आओ मैं ऐलान कर रहा हूँ, जिसको उसके ईमान पे शक हो, आओ मैं बता रहा हूँ अबू तालिब सरकार है क्या। आप यकीन माने एक इल्म आज़ाद है सर, आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, बाबा जी के लिए बात कर रहा हूँ, बच्चे का समझे ना समझे, वो एक अथेंटिक इल्म है, इल्म जफ़र से कहते हैं, उसमें आज़ाद का हिस्सा है। एक नमक है, नमक के आदाद निकालें तो नून के 50, मीम के 40 और काफ के 20, ये बनते हैं 110। उसे निस्बत किससे है? मौला अली के ऐन के 70 है, लाम के 30 हैं, ये के 10 को बनते 110। इसको कामल करेंगे तो बनता है 2। और बदबख्त, अगर तेरी हांडी में नमक ना हो तो तेरी हांडी का जायका नहीं बनता। तू कुल्ले ईमान के बाबा की बात कर रहा है। ये बात तय है ना कि मेरा मौला अली फितरत पे कादर है। ये बात तय है ना कि मेरा मौला अली फितरत पे कादर है। अताअत के सलीके भी वो अपने साथ रखता है। और शबे महराज जो वहदत के हजाबों से निकला था, अबू तालिब के हाथों कदमों पर अली वो हाथ रखता है। जिसके कदमों पे अली वो हाथ रखे, क्योंकि कर दिया काम डाला है अबू तालिब ने, सबकी मुश्किल को भी डाला है अबू तालिब ने। रिस्क मिलता है मोहम्मद और अली के दर से, वो पालने वालों को भी पाला है अबू तालिब। जब तक सरकार इमरान रहे किसी की जुर्रत नहीं हुई कि मोहम्मद मुस्तफा से टकराए। इसी बात पे बात है, बात सुनिएगा। अगर दाद दी तो ठीक है, मगर ना हमने पढ़ के चले जाना है, आपकी मर्जी की बात है। आप अगर चाहें तो किसी को कुछ बना दे, किसी को कुछ बना दे। बेशक बाबा जी वो साहब हैं, बाबा पत्रगाम कहते हैं, 1 लाख रुपए फीस लेता है, उसे शबान आ गया कि बात ही कोई नहीं आती, और लोग फीस भी देते हैं, नारे भी लगाते हैं। या हम करीम निकाल के लाते हैं, सांप सूख जाता है, दोनों हाथ बंद करके किसी के डरे हुए यार नाराए हैदरी, मेरे अकेले की आवाज आपसे ज्यादा होती है। अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं डरते? अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं डरते? जमाना किसके डर से मुस्तफा के, किसके दम से मुस्तफा के डर में रहता है? नबी का कलमा पढ़ने वाले हो ना मुसलमानों, नबी को रोक लो, क्यों काफिरों के घर में रहता है? क्योंकि जिसकी आहट पे ही ताजीम को उठे 14, ऐसा सरदार मिलेगा ना कहीं पद्मों में। अब पद्म समझिएगा, का 2.5 सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब पद्म 10 अदम फरम नीलम दार, ऐसा सरदार मिलेगा ना कहीं पद्मों में। क्या कहूँ, कितना निशान है अबू तालिब। मोहम्मद गोद में बैठा है, अली कदमों में। जिसकी गोद में मोहम्मद बैठे, जो वज़ह मुकड़े को चूम चूम के जवान करे, जो चलना सिखाए, जो सुरमा पहना है, और अपने बेटे को बिस्तर पर सराय दिए, कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। उस जालिमों, उसे शेबे अबी तालिब में रहने की जरूरत क्या थी? उसे 3 साल पत्ते खाने की जरूरत क्या थी अगर वो रसूल का निगहबान नहीं था? इन बदबख्तों को ये पता नहीं चलता। कुछ लोग कलमा पढ़ने के लिए नहीं आते, पढ़ाने के लिए आते। क्योंकि मोहम्मद जो है वो अबू तालिब का मुसलमान है,
اور خدا کی قسم اگر میں یہ کہہ کے چلا جاؤں کہ ابو طالب کے بیٹے کا نام اسلام ہے تو یہ بیدانہ ہوگا۔ ان بختوں کو، چپڑ کناتیوں کو، ان گلی گلی پہ بھونکنے والوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، یہ بات کس کی کر رہے ہیں کہ تو نے عمران کے پائے کو کہاں پایا ہے؟ تو نے عمران کے پائے کو کہاں پایا ہے؟ جس کا سایہ ہی نہیں اس کے لیے سایہ ہے۔ جس کی بیٹی کا نمک کھاتی ہے ساری دنیا، اس محمد نے ابو طالب کا نمک کھایا۔ جس کا نمک کھا کے، خدا کی قسم ایک جگہ رسول تھے، ایک یہود نے دعوت کی، آپ نے کہا ہم وہ گوشت نہیں کھاتے، اس کو تو رات و منات پہ قربان کرتے، لے جاؤ اٹھا لو اسے، مجھے بتاؤ اگر ابو طالب کافر تھا تو پھر نبی وہاں پہ پرورش کیسے پاتے رہے، وہاں سے نوالے کیسے کھاتے رہے؟ سب سے پہلی نعت جو لکھی گئی سرکار عربی کی، وہ جناب سرکار ابو طالب نے لکھی، کیونکہ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے، اور اتنی مشکل سے توحید بچائی ہے محمد نے، توحید بچائی ہے، اور بڑی مشکل سے محمد سے بچایا ہے ابو طالب، محمد کو اتنی ہی بچایا گیا، اور کیا کیا کہ آپ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو بستر پہ سلایا ہے ابو طالب نے، یقین مانے کوئی قتل نہ کر دے، بستر بدلتے رہتے جب تک محمد مصطفیٰ نہیں آتے تھے، دسترخوان نہیں لگتا تھا، کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا۔ جب محمد مصطفیٰ ایک بار گم ہوئے، سرکار ابو طالب نے اپنے 40 نوکر لیے، ان کے پاس تلواریں تھیں، خنجر تھے، آپ نے کہا خدا کی قسم اگر میرا بھتیجا نہ ملا، یہ خنجر انہیں پھونک دینا۔ ان بدبختوں کی میں ان کو تماچا مار کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور عمر بھائی کے حوالے کروں، دل بہت کے بہت سی باتیں کروں، لیکن دامن وقت گنجائش نہیں ہے، سب کو ٹائم ملنا چاہیے۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں پورے پاکستان کے ورلڈ کے معنی وہ سنائیں گے، بابا جی آپ کو سنائیں گے۔ آپ یقین مانیے، ایک بات بتائیے گا کہ اللہ ایک عورت کسی گندے برتن میں دودھ نہیں لیتی، اسے پتا ہوتا ہے یہ پاک ہے، اللہ کسی کافر کی صلب میں یہ نور رکھ دے گا؟ ایسا دوستو نہیں ہو سکتا۔ کسی کا غم 1 دن، کسی کا غم 2 دن، کسی کا غم 3 دن، کسی کا کتنا، کسی کا کتنا۔ خدا علم کی قسم، عزت حیدر کی قسم، مجھے مولا حسین کے آخری سجدے کی قسم، اگر یہ تاریخ میں باتیں نہ ہوں، آپ میرا گلا کاٹ دینا، مجھے پڑھنے نہ دینا۔ رسول میں نے کچی کلاس کتاب میں پڑھا تھا، دوسری کلاس تھی، کہ آپ نے پورا سال کہا یہ عام الحزن حزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ آج میرا وہ تھا جو میرے ڈھارس تھا، جو میری ڈھال تھا، وہ چلا گیا۔ آج ملکۃ العرب چلے گئی، جس نے مجھے مار دیا، جس کے خون سے میں پروان چڑھا، وہ میرے چچا ابو طالب ہیں۔ میں ساری دنیا کے 2 کوڑی حدیث سوال کرتے ہیں، لیکن آپ نے کہا میں ساری دنیا کے احسان اتار سکتا ہوں، ابو طالب کے احسان نہیں اتار سکتا۔